Friends, now my name is Jitesh Kumar. Welcome all of you in concept building classes. So today I discussed fractional part of x. In previous lecture I discussed greatest integer functions so that you can learn it first, then you can come in fractional part of x. I also uploaded limit, determinant or matrix. You can also see these parts, so you can learn from this what I am uploaded. Okay, now I tell about how to define fractional part of x. Okay, so fractional part of x is defined by x minus greatest integer function of x. Okay, what is fractional part of x? Equals to x minus fractional greatest integer function of x. So dear students, you first look my previous lecture of greatest integer function, then you can understand it fully. Okay, otherwise you have some problem here. So you can, my suggestion is you can go first greatest integer function part, then you can learn it fractional part of x. So here students, at last in the going process, मैं लास्ट में आपको विदिन 1 सेकेंड आपको बताऊंगा कि कैसे भी किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप फाइंड कर सकते हैं विदिन 1 सेकेंड. आप देखेंगे और बोल देंगे कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसका क्या होगा. ओके, सो फर्स्ट डिफाइन किया कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का, उसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है. ओके, सो फर्स्ट हाउ, सपोज if you want to find greatest integer function of 1.2. okay, so how can we find? First we write 1.2 minus 1.2. now you can understand what is greatest integer function of 1.2. I am telling you 1.2, this is 1, keep, because you number line, take number line 1.2, this is left. If this is not integer, you can look left of this number. If this is integer, then gives greatest integer function always gives integer. So this is, if this is integer, then gives integer. If this is not integer, you look left side of nearest of this value. Okay, so this is 1, so this is value is 0.2. so greatest fractional part of 1.2 is equals to 0.2. next we can see 1.5. greatest integer what? How to find 1.5 minus 1.5? You can take 1.5 minus. Now you can number line, if you take number line 1.5, this is 1, you can take, look here, this is 1, so this is 0.5. now you take 2.3. okay, 2.3, this is 2.3 minus greatest integer function of 2.3. you took take number line 2.3, 1, this is 3, this is nearest 1, 2.3 minus 1, this is what? You can take, sorry, this is 2. okay, so this is 2, always get what? 0.3. you can also go 5.8. okay, now can take took this, you can see 5.8 minus 5.8. if take number line of this value 5.8, 5.8, okay, 5.8, this is 5, here is 6, just left of this 5.8, this is 5.8 minus 5, this value is 0.8. now you can see serial from here to here, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0.3, 0.3, 0.8, 0.8. now you can take another. तो डियर फ्रेंड्स, now you can see here, यहाँ पे मुझे एक क्लू मिल रहा है कि जो भी इंटीजर होता है अगर डेसिमल में रहता है ये और ऑलवेज पॉजिटिव अगर होगा
जैसे सपोज करें, एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको 0.5 का। सपोज करें ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये 0.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 का निकालना है, ठीक है। तो 0.5 माइनस 0.5, तो इसका वैल्यू आपको क्या देगा, आप देख सकते हैं 0.5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है 0.5 का जस्ट इसके लेफ्ट देखें तो 0 देगा, और 0 में 0.5 में 0 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब भी डेसिमल रहता है तो डेसिमल में क्या हो रहा है, और पॉजिटिव अगर है तो ये ऑलवेज डेसिमल के बाद का जो होता है वही क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो जैसे 1.2 है तो 0.2 हो गया, 1.3 है तो 0.3, 1.5 तो 0.5, 5.8 0.8, 0.5 तो 0.5। तो हम एक तरह से जनरल बोल सकते हैं कि जब भी अगर कोई डेसिमल में होगा और वो पॉजिटिव नंबर होगा तो इसका हम सिर्फ देखते ही 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, क्योंकि डायरेक्ट आप 0.5 जैसे देखेंगे डेसिमल के बाद क्या है, डायरेक्ट डेसिमल लिखेंगे और फिर अगेन यू कैन सी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर हो 9.8 भी होगा और आप उसका चाहते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स निकालना है, तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे आप, 0.8 होगा। 10.9 है, इसका चाहते हैं आप निकालने के लिए तो 0.9 बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि सिर्फ देखते ही हम क्या बोल सकते हैं, अगर पॉजिटिव ओनली रहेगा तब आप ये बोल सकते हैं, निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, इसका मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स मैं निगेटिव का देखता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे सपोज करें कि -0.5 है, ओके। डिफिनीशन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ओके। -0.5 है तो 0.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाट 0.5 माइनस का, ओके। -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं, नंबर लाइन जब आप लेंगे तो ये हो गया 0.5, इस साइड आएगा इसके जस्ट लेफ्ट -1, इस साइड आएगा 0। इसमें से क्या देखना है आपको, जस्ट लेफ्ट, क्योंकि ये क्या है, डेसिमल में है। अगर इंटीजर रहता तो डायरेक्ट इंटीजर लिखते, लेकिन डेसिमल में है तो इसका क्या होगा, डेसिमल में होगा तो इसके जस्ट जो लेफ्ट होगा नंबर लाइन पे वी टेक दिस वैल्यू। तो -1 आ रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, -1। तो -0.5 माइनस और ये -1 दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब -0.5 तो क्या दे रहा है आपको, 0.5 दे रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ देखें, इसको भी जनरलाइज करते हैं, 1.5 माइनस में रहे तब क्या होगा, तो ये क्या देगा आपको, -1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.5, तो इसका जस्ट क्या देखेंगे तो -2 देगा, -1.5 + 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या दे रहा है आपको, बोलिए 0.5, ओके। नाउ यू कैन टेक अनदर। सपोज करें कि इसका लेते हैं मैं -2.8 ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज -2.8 -2.8 ग्रेटेस्ट जो फंक्शन ऑफ -2.8 का क्या देगा आपको, -3 देगा, -2.8 और -3 देगा तो माइनस, अब -3 तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हो जाएगा और फिर आप करेंगे -2.2 2.8, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, +0.2 प्रोवाइड कर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में -2.5 2.8, दिस इज 0.2। नाउ सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज -5.7, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -5.7 का फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, -5.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -5.7 का, ओके। नाउ दिस इज 5.7, नाउ व्हाट इज वैल्यू दिस, -6, बिकॉज दिस इज फ्रैक्शन, सो व्हाट इज दिस 6, तो दिस इज व्हाट 0.3। तो आप यहाँ पे एक जनरल फॉर्म देख सकते हैं। सपोज करें कि आपका ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ एक और 1.25, यू कैन सी हियर माइनस में, ओके। दिस इज व्हाट -1.25 माइनस में 1.25, ओके। यू कैन सी
-1.25 आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा आपका -2 देगा। तो आप देख सकते हैं 1.25 अब +2 होगा। ओके, 2 में से अगर -1.25 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका देगा 0.75 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और मैं देखता हूँ। सपोज करें कि -3.275 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या देगा आपको -3.275 और ये माइनस हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप निकालेंगे इसका -3.275 का। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आपका क्या हो जाएगा -275 और ये माइनस क्या देगा आपका -4 देगा ये। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। इसका जब आप निकालेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आएगा 5 और 2 अगेन क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, और डेसिमल रहेगा। ठीक है, यू कैन सब्ट्रैक्ट 4 -3.275 if you subtract then you can get this value. Okay friends, now you can see a generalized form. अब क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी डेसिमल में होता है वो आता है, बट ये कैसे, जैसे यहाँ 0.8 था तो 0.8 नहीं आया, 0.7 था तो 0.7 नहीं आया, 0.3 आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो आप क्या करें, इसको 10 में सब्सट्रैक्ट करें, इसको डिजिट के बाद और डिजिट को भूल के, जैसे आपका सही जैसे 0.5 है। ठीक है, तो 10 में से क्या करें आप 5 सब्ट्रैक्ट करें और अगेन फिर 10 से डिवाइड कर दें। देखिए आपका वैल्यू ये आ जाए। जैसे ये देखिए 1.5 था, आप क्या करेंगे इसको डेसिमल वाले बाद में जो डेसिमल के बाद रहता है उसको क्या करेंगे आप 10 में से सब्ट्रैक्ट करें और डेसिमल को भूल के, जैसे डेसिमल के बाद क्या है 5 है तो 5 सब्ट्रैक्ट करें और अगेन फिर डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट रहता है उतना ही 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से फिर डिवाइड कर दिए तो अगेन फिर क्या आ गया आपका 0.5 आएगा। अब यहाँ पे देखें जैसे क्या है 10 में से क्या करेंगे 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 8 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड कितने से करेंगे, डेसिमल के बाद कितने हैं 1 है तो 10 से डिवाइड करेंगे। तो आपका 10 में से 8 गया तो 2 में से 10 जाएगा तो क्या आ गया 0.2। यू कैन सी ईयर 0.2। तो आपको डेसिमल, अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 डिजिट का है, डेसिमल के बाद कितने हैं 2, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 100 लेना है। 3 रहेगा तो क्या लेंगे आप 1000। 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट रहेगा तो आप क्या लेंगे 4 मतलब 10,000 ले लेंगे। इस तरह से आपको जाना, जैसे 2 है तो 100 लिए, उसमें से क्या करेंगे 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे और जितने डेसिमल के बाद जितने भी अंक है उतने 00 से डिवाइड करेंगे, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 में से 25 गया तो क्या बचा आपका 75 और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आपका 0.75। यू कैन सी हियर 0.75। तो आपको इसमें डरना नहीं है, सिर्फ क्या देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उतना ही डिजिट 100 उस 10 से मल्टीप्लाई करना। अगर 3 है तो क्या करेंगे आप 1000 से इस डेसिमल वाले बाद के डिजिट को आप डेसिमल भूल के उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इधर क्या है डेसिमल के लेफ्ट में उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको फॉरगेट करना है। डेसिमल के राइट में क्या है उसको सब्ट्रैक्ट करें और फिर जितना डेसिमल है डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उतने ही 00 से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। तो अगर 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 300 से करेंगे और यहाँ पे 100 से, और 275 है तो 275 आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और जब 275 इसमें से 1000 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा 725 आएगा और फिर 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.725 अगेन आएगा आपका। तो आपको निगेटिव का फाइंड किस तरह करना है, तो निगेटिव फाइंड करने के लिए क्या करना है कि अगर डिजिट डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करें और अगेन 10 से डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर 2 डिजिट है, और ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ निगेटिव वाले के लिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्लोज योर आई एंड यू कैन सिंपली व्हाट इज आफ्टर decimal digit you can simply this value is the fraction part of any number if number is positive. If number is negative then you can subtract first if after digit, if decimal after decimal 1 digit number then you can subtract in 10 then divide by 10,
you can get the fractional part of negative. If after decimal 2 digit, then you subtract from 100, again divide by 100, you can get the answer fractional part of this number. If after decimal 3 digit, then you can subtract in 1000 and again divide by 1000, then you can get the answer of this fractional part of this value. So this is so simple. If you practice, you can see and tick the answer. Now अब हम इस पे कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं और फिर अगेन नेक्स्ट हम देखेंगे। जैसे कुछ प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, यू कैन सी। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा x इक्वल्स टू 0 होगा व्हेन फॉर ऑल के लिए इफ़ x बिलोंग्स टू आपका इंटीजर करेगा। ओके, जैसे यू कैन सी हियर, जैसे आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 का निकालना है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1। तो आप देख रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट 1 इंटीजर का इंटीजर ही देगा, 1 माइनस 1 तो 0। तो यू कैन सी नेक्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होता है 0 लेस देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1 होगा व्हेन फॉर ऑल होगा जब x आपका डज नॉट बिलोंग्स टू, आपका बिलोंग्स नहीं करेगा किस में, इंटीजर अगर नहीं हुआ तो। अगर इंटीजर हुआ तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी 0, अगर इंटीजर नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होगा आपका 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो इस तरह से तो हम कह सकते हैं क्या कि फ्रैक्शनल पार्ट जो ऑलवेज लाई करेगा वो क्या करेगा 0 लेस देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1 के बीच में होगा, क्योंकि 0 भी हो सकता है बट और 0 1 के बीच में भी हो सकता है, तो 0 1 हो गया। ओके, नाउ सपोज करें कि किसी भी वैल्यू किसी भी इंटीजर का या किसी भी नंबर का एक बार आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें, फिर अगेन उसका फ्रैक्शनल पार्ट x निकालें आप सपोज करें, तो वो ऑलवेज 0 देता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। अब रियल नंबर में तो सभी आ गया, तो ऑल रियल नंबर के लिए अगर एक बार आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें, अगेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालेंगे, तो वो ऑलवेज 0 प्रोवाइड करेगा आपको। या इसका अपोजिट भी कर सकते हैं कि पहले आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकाल लिए, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x आप निकाल रहे हैं, अगेन इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। नेक्स्ट यू कैन सी एक और है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगेन प्लस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकता है जब आपका x बिलोंग्स टू रियल इंटीजर करेगा, और 1 होगा जब x डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर आपका इंटीजर बिलोंग करेगा तो 0, और अगर इंटीजर बिलोंग नहीं किया तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो आप इस पे एग्जांपल खुद से लेके आप देख सकते हैं। तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ डियर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी एंड नेक्स्ट पार्ट मे बी some topic bring for you. You wait, I come again soon. Take care, bye.